हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है नवरात्रि। आज के वीडियो में हम नवरात्रि त्योहार के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि, जिसे हम नवरात्रि भी कह सकते हैं, यह एक संस्कृत शब्द होता है जिसे हिंदी में हम 9 नाइट्स यानी 9 दिन कहते हैं। हम इसे दुर्गा पूजा नाम से भी जानते हैं। यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार होता है जिसे नारी शक्ति के रूप में मनाया जाता है। Navratri occurs over 9 days during the month of Ashwin. It often ends with the Dashera celebration on the 10th day. प्रायः नवरात्रि खत्म होने पर कई राज्यों में दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू हो जाता है। Navratri is celebrated differently in India's various regions. For many people, it is a time of religious reflection and fasting, while for others, it is a time for dancing and feasting. नवरात्रि का त्योहार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जहाँ कुछ क्षेत्रों में लोग व्रत रहकर इन दिनों अपनी पूजा करते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में इसे डांस या फिर दावत के रूप में भी माना जाता है। यहाँ फीस्टिंग का अर्थ होता है दावत। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. The last 3 days of Navratri are called Durga Ashtami, Mahanavami, Vijayadashmi. The prominent story associated with Navratri is the battle that took place between goddess Durga and the demon Mahishasur, who represents egotism. इस पर्व से जुड़ी एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध के अहंकार के कारण किया था। यहाँ इगोटिज्म का अर्थ होता है अहंकार। नवरात्रि is very important and major festival in the western states of India, Gujarat, Maharashtra and Karnataka, during which the traditional dance of Gujarat called Garba is widely performed. पश्चिमी राज्यों में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जाना जाता है। This festival is celebrated with great zeal in North India as well, including Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and the northern state of Punjab. यहाँ great zeal का अर्थ होता है बहुत जोश। Durga, the mother goddess of Hindus and a form of Devi and Shakti, is believed to have manifested in various forms, and Navdurga Ma are believed to be the most sacred aspects of goddess Durga. यहाँ manifested का अर्थ होता है प्रकट होना। According to a Hindu tradition, it is believed that there are 3 major forms in which goddess Durga manifested herself, namely Mahasaraswati, Mahalakshmi and Mahakali, who are the active energies of Brahma, Vishnu
and Rudra, respectively. ये तीनों ही देवियाँ भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र की शक्ति के रूप में जानी जाती हैं. These three forms of Durga further manifested in three more forms each, and thus emerged the 9 forms of Durga, which collectively called Navdurga or 9 Durgas. इन 3 शक्तियों के अलग अलग फॉर्म नव दुर्गा कहलाते हैं. माता के 9 रूप कुछ इस प्रकार हैं. देवी माँ शैलपुत्री, देवी माँ ब्रह्मचारिणी, देवी माँ चंद्रघंटा, देवी माँ कुष्मांडा, देवी माँ स्कंद माता, देवी माँ कात्यायनी, देवी माँ कालरात्रि, देवी माँ महागौरी, देवी माँ सिद्धिदात्री. माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है. She is the embodiment of the collective power of Brahma, Vishnu and Mahesh. It is in this form that the goddess was worshipped as the consort of Shiva. पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा. इनकी शादी भगवान शिव से होने के कारण इन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी भी कहा जाता है. यहाँ एम्बॉडमेंट का अर्थ होता है अवतार, वही कंसर्ट का अर्थ होता है पत्नी. माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है. The one who practices devout austerity, she is blissful and endures happiness, peace, prosperity and grace upon all devotees who worship her. यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है. इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है. माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है. She represents beauty and grace and is worshipped on the third day for peace, tranquility and prosperity in life. She is the apostle of bravery and possesses great strength. इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है. इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है. इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा. इनका वाहन सिंह है. माता का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है. She is considered the creator of the universe. It is believed that Kushmanda created the universe through a bout of laughter and made it verdant with vegetation. अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है. देवी माँ का पांचवा स्वरूप स्कंद माता है. She is the mother of Skand or Kartikeya, who was chosen by the gods as their commander-in-chief in the war against the demons. इनका ये नाम स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण पड़ा. ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है. सिंह इनका वाहन है. माता का छठा स्वरूप कात्यायनी है. कात्यायनी was born to the great sage Kata as an avatar of Durga, dressed in orange. She exhibits immense courage. इन्होंने कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के पुत्री के रूप में जन्म लिया था.
माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। ये गौर वर्ण है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर घरा कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इनकी साधना करने से लौकिक परलौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो अभी हमने माता के 9 स्वरूपों के बारे में जाना। So friends, let's end this video here और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay connected with our channel English Made Easy.